A very good morning, students. All of you are welcome to the SP online lecture. I am Shravani Kulkarni here and taking the subject of secretarial practice. Okay, Seema madam has done the functions of the secretary. We are in the first lesson only. So now uh, we are going to understand the concept of qualities of the secretary. एक secretary की qualities क्या क्या होनी चाहिए. Okay, now see, we are in the first lesson only and we are learning the qualities of the secretary. I will read it out first and then we will learn what is given in this paragraph. The secretary should possess the certain qualities. Apart from the academic qualification, a secretary requires certain qualities to enable him to fulfill the employer's organization goal. इसका मतलब क्या है? सेक्रेटरी को अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे अगर कोई सादा सेक्रेटरी होगा, कंपनी पर्सनल सेक्रेटरी होगा तो उसको ग्रेजुएशन चाहिए. जैसे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा तो उसको उसके हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए. ही शुड बी पास द कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम, बराबर. बट अपार्ट फ्रॉम इट देयर शुड बी सम qualities which secretary must possess and that we are going to learn today. So that is going to help you to the employer and the organization also. First point is accuracy. Accuracy means correctness. Accuracy must be accurate. A secretary must be accurate in work like a drafting letter, recording minutes and maintaining the record. Accuracy is one of the quality of the ideal secretary. Now what is happening over here? Accuracy का मतलब ही हमें पता है. Accuracy मतलब correctness. मतलब सेक्रेटरी कोई भी काम करने से पहले उसने 10 बार सोचना चाहिए कि वॉट एवर ही इज़ डूइंग वेदर दिस इज़ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, और कहाँ पे कुछ चेंजेस चाहिए क्या. सो वॉट एवर थिंग इज़ देयर, वॉट इज़ गोइंग टू डू इन फ्यूचर, सब करस्पॉन्डेंस में है या मिनट्स बना रहा है वो. नाउ व्हाट इज़ अ मिनट्स? वॉट एवर कंपनी सेक्रेटरी इज़ रिकॉर्डिंग आफ्टर द मीटिंग, जब भी मीटिंग जैसे होता है वो नोट डाउन कर लेता है एक बुक में कि आज की मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ. एंड दिस इज़ नथिंग बट द मिनट्स. ओके, सिंस यू आर न्यू इन दिस कॉमर्स फील्ड, सो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द टर्म्स टू यू. मिनट्स का मतलब है वॉट एवर वी हैव टू कीप द रिकॉर्ड दैट वॉट एवर हैज़ डन इन द meeting. So first point, what is telling it कि company secretary or secretary should be accurate in his correspondence letters, because company secretary is specially he should be highly qualified, plus उसका दूसरा काम क्या होता है? ड्राफ्टिंग द लेटर्स, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, एंड ओवर here he should be accurate in doing all these things. Now our second point is adaptability. एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या? सिचुएशन के साथ खुद को चेंज करना. एडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू एडजस्टिंग द सिचुएशन. The situation changes to the government policies, management policies, etc. See now, government policies and management policies situation के हिसाब से चेंज होती जाती है. तो सेक्रेटरी ऑल्सो शुड गेट एडजस्टेड विद द सिचुएशन एंड ही हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट. अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो उसके हिसाब से हमको भी चेंज होना पड़ता है. नाउ you are not attending the physical lecture because of this COVID, and we also can't come to college and teach you. So this is the media, YouTube का जो एक मीडिया है ऑनलाइन लेक्चर का, which we are also new to this, we are learning this new things. Okay, so this is called the adaptability, new situation के साथ. एंड आप भी YouTube देख के सीख रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, वहाँ से सीख रहे हो, इसका मतलब आप भी सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर रहे हो. वैसे ही एक सेक्रेटरी के साथ, सेक्रेटरी को भी सिचुएशन के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना होता है. एंड ही शुड बी एबल टू change himself according to the situation. Okay students, now come to the third point, cooperativeness. Cooperative refers to the willingness on the part of the secretary to assist others in achieving
और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ही शुड बी कोऑपरेटिव। बराबर, किसी के साथ भी कुछ अगर मतभेद हो गया तो वो पर्सनल लेवल पे ठीक है, लेकिन काम के वक्त कोऑपरेटिवनेस चाहिए। इसका मतलब दूसरों को हेल्प करना, दूसरे के साथ में मिलजुल के रहना। ओके, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द टीम स्पिरिट एंड द सेंस ऑफ टुगेदरनेस। व्हेन वी आर वर्किंग टुगेदर, तभी एक काम को हम बोल सकते हैं शेप दे सकते हैं, वो काम सही में बराबर से होता है। तो हु शुड बी अ कोऑपरेटिव इन नेचर। फोर्थ पॉइंट इज कर्टसी। कर्टसी, it implies, the name itself suggests that he should be have a courtesy. It implies politeness and kindness. A secretary should be a courteous while dealing with the people. This approach creates a positive impression about the employer and the organization. Now courtesy मतलब किसी के भी साथ में हमें हार्शली बात नहीं करना है, हार्शली बिहेवियर नहीं करना है। वी शुड बी पोलाइट एंड काइंडनेस। वी शुड डील विद द अदर्स इन अ सिंपल मैनर। बहुत हार्शली होकर किसी के साथ बोलना नहीं है, किसी के साथ काम नहीं करना है। तो सेक्रेटरी शुड बी अ कर्टसी, शुड हैव अ कर्टसी इन हिज नेचर। बराबर है। एंड फिफ्थ वन इज इनिशिएटिव। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएटिव? हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ में पहल करना, मतलब इनिशिएटिव लेना। इनिशिएटिव मीन्स अ पर्सन tendency to take the efforts voluntarily to accomplish a task. A secretary should take initiative to take the decision on behalf of the employers if they are not present. मतलब अगर एम्प्लॉयर नहीं है, बराबर, एम्प्लॉयर मतलब कौन? जो जॉब देने वाले रहते हैं। अगर कंपनी में बॉस नहीं है अपने और हमें खुद ही डिसीजन लेना है, तो इन एब्सेंस ऑफ हिम, और कोई भी मीटिंग चल रही है या कोई भी काम अगर आपको काम करना है, तो सेक्रेटरी कैसा चाहिए? ही शुड बी सेल्फ इनिशिएटिव, मतलब वो खुद खड़ा होके बोलना चाहिए। एंड शुड बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हम करेंगे ये काम, मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब इनिशिएटिवनेस चाहिए सेक्रेटरी के नेचर में। बराबर है। सिक्स्थ वन इज लीडरशिप। सेक्रेटरी शुड हैव अ एबिलिटी टू गाइड, एडवाइस, इंस्पायर एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स। द लीडरशिप स्किल ऑफ सेक्रेटरी हेल्प्स टू क्रिएट अ टीम स्पिरिट। देखो, कोई भी चीज़ का टीम स्पिरिट कब होता है? आप क्रिकेट के गेम में भी देखोगे और कोई भी गेम में देखेंगे, अगर कैप्टन, ही शुड इंक्रीज द टीम स्पिरिट। अगर कैप्टन ही निगेटिव बोलेगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे? वो भी निगेटिव ही सोचेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ही शुड बी हैव अ लीडरशिप, मतलब सारे जो भी उसके मेंबर्स है, उसके अंडर जो काम कर रहे हैं, उसको वो लीडरशिप, मतलब दादागिरी करना नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, लीडरशिप मतलब वो सबके साथ में रह के उनका टीम स्पिरिट बढ़ाना है, एंड साथ में ये भी देखना है कि उनका काम बराबर से चले। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टी। व्हाट डू यू मीन बाय लॉयल्टी? A loyalty means a faithfulness. Secretarial work is of the confidential nature, and the secretary being a confidential officer, he should not disclose matter of the secrecy of to the anyone. इसका मतलब क्या है कि वो कैसे होना चाहिए? वो what we can say him, he should be a loyal, that means ईमानदार होना चाहिए। We have seen that in the lecture first, पहले 2 लेक्चर में ही देखा कि सेक्रेटरी के पास क्या होता है? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की, जो वो उसने किसी के भी साथ बांटनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एंड ही इज़ नॉट सपोज टू give this information because it is confidential in nature. So he should be a loyal, and being a confidential officer, he should not disclose the matter to the secrecy to anyone. The secretary should give priority only to the organization goal. उसका मतलब उसकी खुद की पर्सनल प्रॉफिट मोटिव उसमें नहीं देखना है उसको। उसने क्या करना है? वो जो सीक्रेट मैटर है, जो सीक्रेसी रखनी चाहिए, वो सीक्रेसी उसने रखनी है, एंड ही शुड नॉट डिस्क्लोज एनी सीक्रेट मैटर टू द अदर्स। अभी नाउ सेकेंड 8 पॉइंट है ऑर्डरलीनेस। इट मीन्स डूइंग द वर्क सिस्टमेटिक मैनर।
It helps the secretary to complete the work in a proper order and in time. That means whatever work see we are doing, we are adjusting the order in that. बराबर है. सपोज कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, हमें पहले कॉलेज में जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तैयार होंगे, उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, वहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, रिक्शा पकड़ने के बाद में हम कॉलेज में जाएंगे, अपना आई कार्ड दिखाएंगे, उसके बाद में हम क्लास में बैठेंगे. दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डूइंग एनी वर्क. बराबर है. अगर हम ये ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो चलेगा क्या? ऐसे ही घर से उठ के हम रिक्शा में बैठ गए तो नहीं चलेगा. यू शुड बी प्रिपेयर वेल इनफ फॉर बिफोर गोइंग टू द कॉलेज. जैसे हमें अपनी बैग लेनी है, वाटर बॉटल लेना है, टिफ़िन लेना है, तो ये जो ऑर्डर है हमारे रूटीन वर्क में हम लाते हैं, वो हमें फॉलो करना होता है. सेम वे एक सेक्रेटरी को भी एक ऑर्डर में जाना होता है. इट मीन्स डूइंग अ वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर. वॉट एवर वर्क ही इज डूइंग, ही शुड फर्स्ट डिसाइड, ही शुड फर्स्ट एनालाइज द वर्क. उसको पहले समझना है, वर्क अंडरस्टैंड करना है, फिर उसका काम एक ऑर्डर में सेट करना है. हाँ, पहले मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और कोई चीज़ रह नहीं जाएगी. बराबर है ना. तो एवरीथिंग विल बी फिनिश इन टाइम. जल्दी से, बराबर से टाइम में, एंड विथ एक्यूरेसी काम बराबर होगा, इन टाइम होगा. Ninth point is pleasing personality. A secretary should have a pleasing personality. This implies his way of talking, mannerism, good temper, confidential approach, and willingness to accept the challenges and situation in a calm way. इसका मतलब pleasing personality मतलब दिखने में अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स. बराबर. यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आपकी पर्सनालिटी एकदम प्लीजिंग होनी चाहिए. इसका मतलब आप हमेशा आपकी बातचीत में पॉजिटिवनेस होना चाहिए, क्विकनेस होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए. आप कभी भी उठ के तत्पर रहना चाहिए काम करने के लिए. बराबर है. आप में मैनर होना चाहिए, मतलब बात करने का एक तरीका होता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट से कैसे बात करते हो, आपके बॉस से कैसे बात करते हो, आप बाहर किससे भी बाहर जाते हो कंपनी के रिलेटेड, तो आप उनसे कैसे बात करते हो. हाउ यू मेंटेन द मैनर. गुड टेम्पर मतलब जल्दी, कोई भी चीज़ से जल्दी एकदम गुस्सा नहीं होके अपना टेम्पर मैनेज करके आपको काम करना है. बिकॉज इन अ डे यू विल बी मीटिंग विद लॉट मेनी पीपल एंड दे आर ऑफ द डिफरेंट नेचर. हर एक का नेचर सेम नहीं होता है. बराबर है स्टूडेंट्स. तो हर एक के नेचर को खुद को सेट करके अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, बराबर से ही हमें खुद से रहना है. एंड कॉन्फिडेंशियल अप्रोच रखना है, जो हमने ऊपर भी देखा. एंड सबसे बेस्ट चीज़ है विलिंगनेस टू चेंज द चैलेंज द सिचुएशन, एक्सेप्ट द चैलेंजेस. जो भी कुछ दिन भर में आपको चैलेंजेस या आपके करियर में आते हैं, वो एक्सेप्ट करने की तैयारी होनी चाहिए. ओनली देन यू कैन गो अहेड. This is not talking about the secretary only. It is for all of us that whatever challenges we are having, तो हमें वो एक्सेप्ट करने ही चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. उसके बाद में है 10th वन इज नॉलेज सीकर. अ सेक्रेटरी शुड बी अपडेट इन हिज नॉलेज. इसका मतलब है सेक्रेटरी, न्यू चेंजेस होते रहते हैं, तो सेक्रेटरी ने अपना नॉलेज अपडेट रहना चाहिए हमेशा. ओके. सो वेन एवर ही इज डीलिंग विद द अदर्स, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. पंक्चुअलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्ट. पंक्चुअलिटी मतलब it is a related time sense, refers to doing the things in appropriate. Lack of punctuality creates an impression about the organization, bad impression. पर punctuality मतलब कैसे, अगर आपको ऑफिस में जाना है रोज़ 9 बजे, तो आपने रोज़ 9 बजे ही जाना है. बराबर. कभी एक आध बार कुछ प्रॉब्लम हो गया, दैट इज़ ओके. बट कभी 9 बजे गए, कभी 10 बजे गए, कभी दोपहर को गए, कभी गए ही नहीं. बराबर. कभी एक काम किया, कभी एक काम छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा. ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन. पंक्चुअलिटी, जो काम उसने किया है वो पंक्चुअल होना चाहिए. मतलब अगर रोज़ उसने वो करने का डिसाइड किया है, तो एट द सेम टाइम ही शुड डू दैट वर्क. ऐसा नहीं है कि आज मैंने वो काम 1:30 बजे किया, कल मैं उठ के रात को करूँगा, परसों मैं दोपहर को करूँगा. नॉट दैट वे. यू शुड बी अ पंक्चुअल. एंड ये पंक्चुअलिटी
is, again I will tell you, this is not only for the secretary, for all of us it is very very important thing. एंड अगर वो पंक्चुअल नहीं है तो उसका बैड इंप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है. सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट. मतलब if he is having 8 hours in a day to work, okay, and whatever work he has been assigned, he should be able to adjust with that work. हाँ, ये काम को कितना समय मिलना चाहिए, दूसरा काम को कितना समय मिलना चाहिए, किसको कितनी प्रायोरिटीज देनी चाहिए, कौन सा काम पहले है. ओके, सो अगेन अगर वो कल आएगा तो सेम सिचुएशन के साथ में सेम पंक्चुअलिटी करेगा. हाँ, अगर सिचुएशन कुछ चेंज आ रही है और सडनली कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसको वो काम पहले करना है. दैट मीन्स हमने जैसे अभी ऊपर सीखा कि ही शुड बी एडजस्टेड, गेट एडजस्टेड विद द सिचुएशन. जैसी सिचुएशन है वैसा उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा. 12th है साउंड जजमेंट. अ सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशन and accordingly take the correct decision. The secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinates. इसका मतलब साउंड जजमेंट का मतलब क्या है? अ सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशन अकॉर्डिंगली. सिचुएशन अभी कैसी है एंड उसके हिसाब से उसको डिसीजन लेना है, उसकी जजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए. द सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट. उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उसकी इफ़िशियंसी भी उसको जाननी है, उसकी अच्छाई क्या है, वो कौन से पॉइंट से में वीक है, तो उसको इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस आने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, ये जजमेंट भी उसने करना चाहिए. किसको क्या काम देना चाहिए, बराबर. अगर एक पर्सन ही लिटिल बिट स्लोअर इन वर्क और आपको आज काम जल्दी चाहिए तो उस आदमी से आप करा के क्या करोगे, आपका काम जल्दी नहीं होगा. तो आपको जजमेंट क्या करना चाहिए कि आपके सबऑर्डिनेट में कौन ऐसा है कि जो जल्दी से मुझे ये काम करके देगा, उसको ये काम सौंपना चाहिए. सो दिस जजमेंट ये उसको रखनी है. 13th इज टैक्टफुलनेस. व्हाट डू यू मीन बाय टैक्टफुलनेस? बात करने की टैक्ट, काम करवाने की टैक्ट, बराबर है. इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल द सिचुएशन इन अ राइट मैनर. एज अ सेक्रेटरी टू डील विद द डिफरेंट पर्सन एंड सिचुएशन, द सेक्रेटरी विल हेल्प द इन दिस. द क्वालिटी विल हेल्प सेक्रेटरी इन अ रिएक्टिंग इन अ वाइज सेंसिबिलिटी वे. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? टैक्टफुलनेस मतलब कोई भी चीज़ कैसे टैक्टफुल से संभाल सकते हैं आप. इसका मतलब आप ये कितना जल्दी ये काम कर सकते हो. अगर किसी से मुझे काम करवाना है, ओके, तो वो कैसे टाइप से मैं करूँगा, ये उसको टैक्टफुल आना चाहिए. टैक्टफुली बात करना आना चाहिए, काम करवा के लेना आना चाहिए, खुद भी काम करना चाहिए और दूसरे से काम करवा के लेने को भी आना चाहिए. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द what do you say qualities of the secretary. Now one more thing I would like to tell you that we are giving one homework to you. okay, each lecture के बाद में हम आपको एक homework में एक क्वेश्चन देंगे. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको एक नोटबुक बनानी है. okay, we have given already 2 questions to you. now this is the third question that you have to write. आज जो भी मैंने आपको सिखाया है वो आपको करना है. एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज राइट द क्वालिटीज़ ऑफ द सेक्रेटरी. मतलब जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, जो क्वालिटीज़ है सेक्रेटरी की, वो आपको वो बुक में ही लिखना है एंड वो मुझे ईमेल के थ्रू भेजना है. okay, I'll be sending you my email and in that email you have to give me the homework. it is very very compulsory. रोज मैं वो देखूंगी. so that's all about the today's lecture. if you have any doubt you can ask me through the email or you can contact me if you have any queries regarding this. so thank you for the today's lecture students. Bye.